Hello dear students. Today we want to discuss the remaining part of the determination of equivalent mass. In the lecture 4, we discuss up to chloride formation method, and using the chloride formation method how to determine the valency of the element. Up to that part we discuss. The determination of equivalent mass for elements, because the last method है method number 4, that one today we want to discuss. The method number 4, that one is determination of equivalent mass. Determination of equivalent mass by double decomposition method. By double decomposition और double displacement method भी बोल सकते हैं हम, decomposition और displacement method. To see this method, so let us consider one a double displacement or double displacement reaction AB plus CD. After reaction form हुआ है AD plus BC. तो AD and CD दो कंपाउंड का बीच में आयन एक्सचेंज हुआ है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो वी कैन राइट सी हियर मास ऑफ AB reacted divided by, इस विदिन ब्रैकेट हम लिखेंगे WAB divided by mass of, तो any two you can take, mass of AB and mass of CD also you can take, mass of AB and mass of AD also you can take, mass of CD and mass of BC also you can take, any two reactant or one reactant another product, any two you can take. तो हम लिख सकते हैं mass of AB reacted divided by mass of CD reacted, WCD, equal to equivalent mass of AB divided by equivalent mass of CD, equivalent mass of CD equal to equivalent mass of A plus equivalent mass of B divided by equivalent mass of A C plus equivalent mass of D. तो यहाँ लिखेंगे equivalent mass of C plus equivalent mass of D. So this is our main equation ना. तो हम AB CD के जगह में AB लिख सकता है, mass of AB reacted divided by mass of AD form, वो लाइन भी यूज कर सकते हैं. तो अभी हमारे ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, हाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ बी. तो ये दोनों इक्वल कैसे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. आयोनिक कंपाउंड, जनरली डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आयोनिक रिएक्टेंट के बीच में होता है. तो एक एग्जांपल लेते हैं. सी हियर वन एग्जांपल इज सपोज कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉल्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट मास of calcium carbonate equal to, तो molecular mass of this one is 100 divided by n factor. तो ये salt है, after ionization calcium ion plus carbonate ion, तो ये cation है, ये anion है, तो cation का वैलेंसी भी 2, anion का वैलेंसी भी 2. तो salt के लिए इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय टोटल कैटायनिक और एनायनिक वैलेंसी. तो कैटायनिक वैलेंसी यहाँ 2 लिखेंगे डिवाइडेड इक्वल टू 50 ग्राम. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 50 ग्राम. तो इसको अनदर वे वी कैन राइट, और इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट. तो एक कैल्शियम की जगह में ना वी कैन राइट 40 एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40, तो उसका वैलेंसी 2 प्लस कार्बोनेट आयन एट फॉर्मूला मास 60 डिवाइडेड बाय इसका वैलेंसी 2 इक्वल टू अगेन देखो 50 ग्राम वी कैन राइट. दैट इज वाई वहां हमने जो लिखा था इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ बी. तो ये लाइन हमने लिखा था, तो यहाँ ये आ गया 50 ग्राम. तो नाउ बेस्ड ऑन दिस मेथड लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल. तो एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं. वन न्यूमेरिकल
The numerical is question 1.52 gram of a metal hydroxide. 1.52 gram of a metal hydroxide on heating gives 0.995 gram of metal oxide. Full stop. Calculate the equivalent mass of the metal. Calculate the equivalent mass of the metal. तो ये क्वेश्चन है. तो now using this method, this concept of this method, how will you calculate the equivalent mass of the metal? तो come to the solution now. Solution के लिए solution. Let the molecular formula of the metal hydroxide be MOHX. मेटल देखो कौन सा मेटल है उसका वैलेंसी हमें पता नहीं है, तो when X is the valency of the metal. So now come to the reaction. MOHX on heating M2OX, ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, प्लस H2O, क्योंकि इसको बैलेंस हम नहीं कर सकते हैं इसीलिए, क्योंकि मेटल का बैलेंस हमें पता नहीं है, तो दिस विल फॉर्म. तो नाउ mass of metal hydroxide reacted divided by mass of metal oxide formed equal to equivalent mass of metal hydroxide divided by equivalent mass of metal oxide equal to, नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे equivalent mass of metal plus equivalent mass of hydroxide ion divided by equivalent mass of metal plus equivalent mass of oxygen. ये बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हम ये लाइन लिख सकते हैं. नेक्स्ट पुट द वैल्यू नाउ. मेटल हाइड्रोक्साइड का मास कितना था 1.52 डिवाइडेड बाय मेटल ऑक्साइड का मास कितना था 1195 इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसका फॉर्मूला मास 17 है, एंड फॉर आयन वैलेंसी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज. तो यहाँ चार्ज 1 नेगेटिव है तो वैलेंसी 1 है, तो इसका फॉर्मूला मास 17 बाई 1 इक्वल टू इक्विवेलेंट मास 17 होगा. तो हम यहाँ 17 लिख देते हैं डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन की इक्विवेलेंट मास 8 है. तो नाउ if you solve this, only एक ही unknown variable है which is equivalent mass of the metal. So after solution you will get equivalent mass of metal equal to 9 gram. So this is the answer after solution. यही है, इस मेथड का कॉन्सेप्ट याद रखो. if question asks तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. So this is all about the methods for determination of equivalent mass. Method for determination of equivalent mass of element. तो if question asks कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरा ठीक ठाक रखो. if question asks फटाफट आंसर निकाल दो. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड. इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हम कैलकुलेट करेंगे. इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड के लिए फॉर्मूला E acid equal to molecular mass M mass divided by
n factor or valency factor. For acid, what is the meaning of n factor? See here. For acid, n factor equal to number of replaceable or ionizable hydrogen atoms present in positive anti present in one molecule of the acid. One molecule of the acid. So this is the n factor of the acid. So now let us take some examples. Based on this, some examples. Come to the example. Acid, यहाँ लिखो n factor. The acid पहले हम लिखेंगे HClO4 परक्लोरिक एसिड, HCl, H2SO4, H2CO3, RCOH, then H3PO4, then H3PO2, sorry H3PO3 लिखते हैं हम, H3PO3, H3PO2 and finally H3BO3. जो फर्स्ट एसिड में देखो परक्लोरिक एसिड, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक ही हाइड्रोजन है n फैक्टर 1, इसके लिए एक ही हाइड्रोजन है n फैक्टर 1, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो ये जो मोलिक्यूल जब आयोनाइज्ड होगा तो इट विल गिव 2H प्लस आयन. तो ये जो है ये इसका भी 2 है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में the hydrogen which is attached with oxygen, that hydrogen is ionizable and acidic. तो एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है n फैक्टर 1. तो now H3PO4, here all the three hydrogens are ionizable. तो अभी ये जो तीन है, ये तीन है एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन. तो ऐसी एक्सेप्शन में सी हियर, इसका n फैक्टर 2, इसका n फैक्टर 1, इसका भी n फैक्टर 1. तो लास्ट जो 3 एसिड है तो हाइड्रोजन सब में 3 है, बट देखो n फैक्टर 3 नहीं है. तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो ये जो एक्सेप्शनल पार्ट है इसको हम एक्सप्लेनेशन देंगे, रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. तो इसका रीजन एक्सप्लेनेशन के लिए सी हियर हम यहाँ लिखते हैं एक्सप्लेनेशन of exception part. Exception parts. तो इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ये जो पहला दोनों है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड है, तो इसका n फैक्टर 2 and 1 क्यों है? तो फॉर दिस पर्पस यू शुड नो द स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर के लिए सी हियर H3PO3 and H3PO2. तो ये दोनों का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. ये P है तो स्ट्रक्चर OH, P डबल वन ऑक्सीजन, OH, यार हाइड्रोजन. इसके लिए HO सिंगल वन, P डबल वन O, H. तो ये जो दो एसिड है याद रखो, ये दोनों एसिड में द हाइड्रोजन व्हिच इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन एसिडिक है, आयोनाइजेबल है. द हाइड्रोजन व्हिच इज बॉन्डेड विथ फॉस्फोरस, हाइड्रोजन व्हिच इज बॉन्डेड विथ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर है. तो इफ यू ब्रेक दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड इफ यू ब्रेक, तो यू विल गेट हाइड्रोजन एटम, नॉट H प्लस आयन. तो ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है. तो अभी हम लिखेंगे, देखो ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये एसिडिक, दिस हाइड्रोजन नॉट एसिडिक. तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, आउट ऑफ दिस 3 हाइड्रोजन
सिर्फ 2 हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये आयोनाइज्ड होने से 2 H+ आयन मिल जाएगा, इसीलिए इसका n फैक्टर 2। तो सिमिलरली कम टू दिस लाइन में, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, बट ये जो 2 हाइड्रोजन है नॉट एसिडिक, तो इसीलिए इसका n फैक्टर 1 है। मीनिंग इस ये हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन जब आयोनाइज्ड होगा, देखो वही हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में मिल जाएगा, तो इसका n फैक्टर 1 है, इसका n फैक्टर 1 है। तो यही रीजन है। तो why n factor of H3PO3 is 2 and n factor of H3PO3 is 2 is 1। तो नेक्स्ट कम टू द बोरिक एसिड, लास्ट में जो लिखा था हमने H3BO3, तो उसका रीजन क्या है, तो कम टू दिस पॉइंट। पहले नोट देखिए, ये लाइन हम लिख लेते हैं। तो H3BO3 is not a protic acid, protic acid, it is a Lewis acid। तो I think you know what is the meaning of Lewis acid. It is a Lewis acid. Full stop. When dissolved in water, when dissolved in water, when dissolved in water, it ionizes according to the following reaction। द रिएक्शन देखो, H3BO3 का जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर देते हैं, H3BO3 का स्ट्रक्चर, दो HO बोरॉन OH, दिस साइड OH प्लस H2O। तो आफ्टर रिएक्शन HO BOH OH कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड OH माइनस प्लस H+ आयन। ये वाला पार्ट देखो, बोरॉन जो है, बोरॉन की एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3, तो इसका वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और वो तीनों इलेक्ट्रॉन इस साइड में 3 ऑक्सीजन के साथ 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज्ड हो गया। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस 3 कोवैलेंट बॉन्ड विद 3 ऑक्सीजन, बोरॉन की वैलेंस शेल में देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो नाउ फॉर सेटिस्फाइंग ऑक्टेट रूल, तो बोरॉन एटम को और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये जो वाटर है, वाटर लुईस बेस है, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लुईस एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये जो OH ग्रुप है ये वाटर से आया है, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इसी तरह बाय रिलीजिंग 1 H+ आयन, और ये जो H+ आयन आया है दिस इज फ्रॉम H2O। तो हियर वन मोर पार्ट, यू मे आस्क व्हाट इज प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड वही है जो आफ्टर आयोनाइजेशन जो खुद ही H+ आयन देता है, उसको बोलता है प्रोटिक एसिड। जिस चीज का आगे वाला एग्जाम्पल में जो जितना दिखाया था सब प्रोटिक एसिड है। बट ये जो बोरिक एसिड है, देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन था, इसके पास 3 हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, तो तीनों हाइड्रोजन देखो अभी तो प्रोडक्ट साइड में बोरॉन के साथ ही है। तो ये एसिड खुद ही H+ आयन नहीं दिया है, ये एसिड वाटर के साथ रिएक्ट किया है, आफ्टर रिएक्शन ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, और ये जो H+ आयन रिलीज हुआ है ये वाटर मॉलिक्यूल से आया है। तो ये बोरिक एसिड से नहीं आया है, तो इसलिए वो प्रोटिक एसिड नहीं है, वो लुईस एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट्स n फैक्टर इज 1। तो इसका n फैक्टर 1 क्यों बोला है, सिंस इन द ओवरऑल प्रोसेस 1 H+ आयन इज रिलीज्ड, एक ही H+ आयन रिलीज हुआ है, तो इसका n फैक्टर 1 है। तो वही हम लिखेंगे, सिंस इन द ओवरऑल प्रोसेस in the overall process 1 H+ ion is released, so n factor of H3BO3 is 1। I think you have got the reason। ये जो 3 एक्सेप्शन एसिड था, तो तीनों का n फैक्टर जितना हाइड्रोजन है वो n फैक्टर क्यों नहीं हुआ है,
तो फर्स्ट जो ये ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ये दोनों में कॉन्सेप्ट यही है, द हाइड्रोजन व्हिच इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, दैट हाइड्रोजन इज आयोनाइजेबल एंड एसिडिक। द हाइड्रोजन व्हिच आर अटैच्ड और बॉन्डेड विद फॉस्फोरस एटम, वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, आयोनाइजेबल नहीं है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने यहाँ दे दिया है, द क्यू एन फैक्टर 2 एंड 1 है, हमने क्लियर कट मेंशन किया है। तो लास्ट वन H3BO3 जो है वो बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का एन फैक्टर फिर 1 क्यू है, तो वहां पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो एन फैक्टर क्यू है। तो आज से याद रखो, क्वेश्चन ये बोरिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन हुआ भी था नीट में। तो ये बोरिक एसिड जो है ये प्रोटिक एसिड नहीं है, ये आयोनाइज्ड होकर खुद ही H प्लस आयन नहीं दे सकता है ये, दैट इज वो प्रोटिक एसिड नहीं है। प्रोटिक एसिड वही है जो खुद ही H प्लस आयन डोनेट करता है, तो ये H प्लस आयन डोनेट नहीं कर सकता है ये। तो व्हेन बोरिक एसिड डिजोल्व इन वाटर, तो वाटर के साथ लुईस एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू ये प्रोडक्ट बनाता है। तो ओवरऑल प्रोसेस में एक H प्लस आयन रिलीज हुआ है, और जो वाटर से आया है वो बोरिक एसिड से नहीं, वो वाटर से आया है। तो ओवरऑल प्रोसेस में एक ही H प्लस आयन रिलीज हुआ है, तो दैट इज वाई इसका एन फैक्टर इज 1। तो ये एसिड के एन फैक्टर के कॉन्सेप्ट, एग्जांपल विद एक्सेप्शनल पार्ट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेसिस। तो बेसिस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, equivalent mass of equivalent mass of bases। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस के लिए सी ईयर कॉन्सेप्ट किया था, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर की जगह में अभी हम क्या लिखेंगे, सी ईयर फॉर बेसेस, फॉर बेसेस एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और ionizable OH group present in one molecule of the base। ये पॉजिटिव एंटी का मीनिंग है, सम ऑफ द स्टूडेंट प्रॉब्लम हो सकता है, इसको प्रेजेंट को शॉर्टकट फॉर्म में हम इसी तरह लिख सकते हैं, प्रेजेंट, नोट लिखने का टाइम है प्रेजेंट, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, द एन फैक्टर। तो हम दो सर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ दिस वन। तो एग्जांपल में सी हियर, एग्जांपल के लिए गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। एग्जांपल देखिए, बेसेस एन फैक्टर NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, तो ये सब एग्जांपल में सी ही है, तो और भी ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जितना OH ग्रुप है वही उसका एन फैक्टर है। तो हम इसके लेते हैं, ये एक ही OH ग्रुप है 1, here 1 OH group, here also 1, here 2, here 3, here 2। तो these are the n factor of this bases। यही है, बेस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो एन फैक्टर। तो आफ्टर दिस बेसिस नेक्स्ट पार्ट जो है देखो हम डिस्कस करेंगे एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट में जाएंगे हम, और एक से लिखते हैं इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट्स। देखिए शॉर्टकट फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं, ई सॉल्ट इक्वल टू मोलिकुलर मास m मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो सॉल्ट जो है, अलग अलग सॉल्ट के लिए एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो पहले नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे
normal salts. Number 1, normal salts. तो नॉर्मल सॉल्ट्स में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स? आई थिंक यू नो, फिर भी हम यहाँ रिपीट कर देते हैं. नॉर्मल सॉल्ट्स फॉर्म बाय complete neutralization of acids and bases. फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसेस. एसिड बेस दोनों की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है. तो एग्जांपल लेते हैं. सी हियर एग्जांपल. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड. तो आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4 प्लस 2H2O. तो एसिड बेस रिएक्शन का बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड क्या है, देखो यहाँ. तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका एन फैक्टर 2 है, तो एसिड का एन फैक्टर बेस के आगे लिखो. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं है. तो एसिड का एन फैक्टर बेस के आगे लिखो, बेस का एन फैक्टर एसिड के आगे लिखो. और ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट for complete neutralization of one molecules of H2SO4, again listen, for complete neutralization of one molecule of H2SO4, 2 molecules of sodium hydroxide is required. तो इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है. तो आफ्टर रिएक्शन ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है इसका नाम है नॉर्मल सॉल्ट. दिस सॉल्ट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट. तो नॉर्मल सॉल्ट के लिए एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम आज नहीं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ द नॉर्मल सॉल्ट्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द एन फैक्टर ऑफ द नॉर्मल सॉल्ट्स फ्रॉम देयर मोलिकुलर फॉर्मूला. तो आज के लिए यहीं पे रखो. रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे. ओके, ठीक है, बाय.